गुड आफ्टरनून फ्रॉम गोबिस्तान नेशनल पार्क। और दूसरा जो इससे पहले वाला व्लॉग था वो काफ़ी बड़ा हो गया था, इस वजह से इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। जो मड वॉल्केनोस था उसका व्लॉग मेरा काफ़ी बड़ा हो गया था, जिसकी वजह से इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। इस टाइम हम मौजूद हैं गोबिस्तान नेशनल पार्क में, जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज उसकी एक साइट है। और यहाँ पे जो रॉक्स हैं ये तकरीबन 3000 ईयर अगो से तकरीबन 21,000 एंशिएंट ओल्ड है। और इसके यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूडिंग की वजह जो है कि ये इसकी क्रेविंग है, तो रॉक क्रेविंग की वजह से ये मशहूर है। तो आगे चलें, आपको मैं फिर ये साइट दिखाता हूँ। थैंक यू वेरी मच। Different. All right, guys. So what you can see in front of you right now, this handmade holes in the ground, are the rainwater collectors. Look, almost every big city, like they appeared on the sources of a drinking water. But here, Caspian Sea was the only source, which is salty. You cannot drink this water. But the climate was different back in Sam. So we had a lot of rainy days, and people used handmade rainwater collectors to collect water, to like a water harvest. And we have 12 rainwater collectors over here, and it helped us to suggest approximate amount of people who live here together in the same time. So this could cover needs of 40 people, up to 40 people, plus some livestock that they had over here. You can see they're still functioning. It was raining a couple days back. There is some water over there, and because they still preserve water, you see, inner surface is destroyed. That's why we don't know precise age. It's very crowded, so I'm gonna be doing fast. Okay, guys. Take this like 2 minutes you have for photos. Afterwards, I'm continuing with you, and they do photos, so we can do like this. This is the best way, I guess. So right now I'm going to show you the oldest petroglyph that we have over here in the Gobustan. And to see them, first of all, I need you to take a look at the information stand. You can see 3 figures of women. 1, 2, 3. This is the image from the front side, and these 2 are like a side, like a profile images. You can see them right in front of you. 1, 2, 3. None of these figures have hair. These are figures of women, and none of them have a head, arms, or legs. Theory says, you see, they have like neck, breast, belly, and the back. Same over here: neck, breast, belly, and the back. And the theory says, like the first petroglyphs, when people just started doing them, they were doing only simple shape. अच्छा जी, इसको हमारी ज़ुबान में कहते हैं संग तराशी। ये पत्थरों पे जो है इन्होंने नक्शे वगैरह बनाए हुए हैं। ये कोई शेप्स बनाई हुई हैं। ये 2 बुल्स हैं, ये फेसिंग एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। एक देख सकते हैं, और इस साइड पे 2-3 लड़कियां ये क्रेव की हुई हैं। तो इसी तरह की ये पत्थरों पे संग तराशी की हुई है। और इनके कहने के मुताबिक ये जो है तकरीबन 40,000 साल पुरानी है। 21,000, कोई 21,000, कोई 20,000, कोई 15,000, मतलब इस तरह पुरानी है। यहाँ पे सारे पत्थर ही पत्थर हैं। तो एज़ पर टूर गाइड, जब ये दरियाफ्त हुआ था, जब इनको पता लगा कि ये दरअसल इनका जब बाकू में ऑयल ख़त्म हुआ था, उसके बाद इन्होंने ऑयल के लिए दोबारा इन्होंने बाकू मेन सिटी में जब ऑयल ख़त्म हुआ तो इन्होंने फिर इर्द गिर्द के एरिए छानना शुरू किए। इर्द गिर्द के एरिए में ऑयल की तलाश में जब ये निकले, तब इनको ये जगह डिस्कवर हुई। और उसके बाद इन्होंने पूरी दुनिया से साइंटिस्ट को इनवाइट किया, जिन्होंने आके इस पर रिसर्च की। और रिसर्च के बाद इनको पता लगा कि ये पत्थर जो हैं ये तकरीबन 40,000 साल पुराने भी हैं। इनमें जो मोस्टली, मतलब जो सबसे पुराना पत्थर मिला वो 40,000 साल पुराना है। 40,000 साल से 3,000 साल तक पुराने पत्थर हैं। Goats were first domesticated animals over here, and because the
surrounding area was not very friendly. Like we had wolves over here, we had hyenas over here. Locals needed a safe place for their livestock. That's why they used this shelter on this purpose. It's not very big. You can see there's this space is like 10 square meters over there. There's some space behind this rock as well. Not very deep. And the ceiling is like maybe 1.5 meters, which is not enough for people, but big enough for goats, for small animals. And that's why they were using this as a local barn, let me say. Why we know that? All of the petroglyphs over here are petroglyphs of animals and very detailed. That means they have a lot of time. They have them a lot of time for here as the reference, so they had a lot of free time as well to do very detailed petroglyph of the animals. Besides that, you can see 5 rocks inside, 1 of them outside and 4 of them in. Yes. Please, we take some photos for. ये देखें, ये एक और पेट्रोगिल्प्स है। अच्छा, ये गार सी बनी हुई है और यहाँ पे लोग बैठा करते थे, जैसे वो किलों में लोग नहीं बैठ के वो देखा करते थे, तो यहाँ से ये पूरा एरिया नज़र आता था। अगर कोई दुश्मन वगैरह आता था तो ये लोग यहाँ से देख के आगे अलर्ट देते थे। अलर्ट ये कैसे देते थे? अलर्ट ये देते थे, एक पत्थर है इधर, उस पत्थर के ज़रिए ये वो पत्थर जो है उस पर अगर आप कोई भी पत्थर लेके हल्का सा बजाएंगे तो वो ढोल की तरह बजता है। वो पत्थर मैं आपको दिखाता हूँ, हम उसी पत्थर की तरफ जा रहे हैं। ये जो शेल्टर है, ये इसको बुल शेल्टर कहते हैं, ठीक है। ये इस पे देखें, बुल की क्रेविंग भी हुई हुई है। इस जगह को बुल शेल्टर कहते हैं। इसमें एक लड़की और एक लड़के की पत्थर पे क्रेविंग हुई हुई है, बुल की क्रेविंग हुई हुई है और काफ़ी सारी बोट्स वगैरह की क्रेविंग हुई हुई है। दिखा देता हूँ। Bir gün gezdirersen. Buraya getirmem onlar. अच्छा, एक बात है कि इन्होंने अपनी जो हिस्ट्री है उसको बड़ी ज़बरदस्त तरीके से प्रिजर्व करके रखा हुआ है और उसको वे ऑफ अर्निंग बनाया हुआ है। बहुत मतलब यहाँ पे एंट्री फ़ी है जो मेरे ख्याल में 25 मन्नत है और इन्होंने बड़े अच्छे से मेंटेन किया हुआ है इस एरिया को और जगह जगह पे इनकी सिक्योरिटी है और अपने कल्चर को, अपनी मतलब हिस्ट्री को, उसी को वे ऑफ अर्निंग बनाया हुआ है। जो अपने हिस्टोरिकल साइट्स हैं उनको वे ऑफ अर्निंग बनाया हुआ है, बड़े अच्छे से प्रिजर्व किया हुआ है। ये बात इनकी मुझे बहुत अच्छी लगी है कि बहुत ज़्यादा ये केयर कर रहे हैं। Lines, carvings, but in fact, if you take a closer look, all of them are petroglyphs. So people, you can see body, legs, hands, head. Another one, body, legs, hands, head. You can see over here. सारी रॉक पे क्रेविंग हुई हुई है। One below and one above. The one above didn't preserve that well as the one below. The reason of that, when scientists just discovered Gobustan, all of the shelters were covered with the sand until this level. ये पेट्रोग्लिफ्स जो है ये इधर से ये रास्ता आता है, इसके अंदर ये बने हुए हैं। Potem będziemy gdzieś strony, po prostu widzę tylko i manipulować. ये देखने में आम सी चीज़ लगती है लेकिन इन लोगों ने इसको कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है और ये जो गोरे लोग हैं ये इनको बड़ा You can see petroglyph of the bull, 13,000 years old petroglyph of the bull. His head, horn, front legs, back legs, tail, and the spine. Also, you can see donkey. You remember I told you donkey is always depicted next to this bull, so you can see. बड़े अच्छे से प्रिजर्व करके रखा हुआ है और गोरे जो है इन चीज़ों के शौकीन हैं, यही कुछ देखने आए हुए हैं, ठीक है। हमें तो इस आर्ट से कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन अब आए हुए हैं तो देखते हुए जाएं।
लेकिन मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ कि इन्होंने इसको कमाई का ज़रिया बनाया हुआ है और बहुत अच्छे से। और इधर इतनी रश है, इतने लोग हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत ज़्यादा इधर लोग आए हुए हैं अभी। अच्छा, मैंने जो आपको स्टोन के बारे में बताया था, जो बजा के जो जिस शो स्टोन पे ये मतलब दूसरा पत्थर मार के आवाज़ पैदा करते थे ढोल की तरह, और ये पीछे वाइट स्टोन दिखाया ये वो वाला था। रश बहुत है लोगों की, बहुत ज़्यादा रश है। अपनी एंशियंट हिस्ट्री को इन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जगह जगह पे इन्होंने बंदे डिप्लॉय किए हुए हैं जो मतलब इसकी केयर करते हैं। कोई अगर गलती से भी इस रोप के अंदर घुस जाए उसको बाहर निकालते हैं। मतलब बड़ा लुक आफ्टर कर रहे हैं इस जगह को। चलिए जी, गाड़ी में हम आके बैठ गए हैं। अब वापसी का सफर शुरू है। तो आज का व्लॉग यहीं तक है। अभी इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो मैं दूसरी वीडियो में शेयर करूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो काइंडली लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक यू।